नमस्कार दोस्तों, जिवें कि पता है अपना पैस ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੈਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। मैं इंग्लिश स्टेटमेंट नाल लिखूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। आ क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस आपको दित्तियां हुई सी 751, 755, 715। दूसरी ऑप्शन सी 755, 715, 751। तीसरी ऑप्शन है 715, 751, 755। चौथी ऑप्शन है 715, 755, 751। अपने को चार ऑप्शन दित्तियां हुई सी। देखो आप किस काम करना वाधे क्रम च वाधे क्रम च आपको पता है पहला छोटी फिर वड्डी आती है ना। आप चैक करते हैं, देखो ध्यान नाल 51, 55, 15 ये नहीं हैगा क्योंकि छोटी विच आ गई। 55 तो बाद 15 आ गया, ये भी नहीं हैगा क्योंकि छोटी आ गई। इत्थे 15, 715, 751, 755 क्योंकि 7 सेम है तो मैं पिछले 3 पढ़ रहा। 15, 51, 55 आ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ? 50 lakhs is equal to फिल अप मिलियंस। किन्ने मिलियन के बराबर है? ऑप्शन अपने को हैगियां 50, 5, 500, 75। आपां नूं पता है 1 मिलियन 10 लाख के बराबर हुंदा है। अपने को 50 लाख ने तो फिर 50 लाख किन्ने मिलियन के बराबर होगा? 5 दे। कितना आंसर आ गया अपने को? बी पार्ट आ गया कि 5 मिलियन किहदे बराबर है? 5 लाख दे। नैक्सट क्वेश्चन है जो अपने को अप्रोक्सीमेशन का एस्टीमेशन का आप कह सकते हैं निकटीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 703 का सैकड़े अनुसार निकटीकरण करो। राउंडेड ऑफ 703 टू हंड्रेड्स। आप 700 का निकटीकरण करना है किहदे हिसाब नाल? सैकड़ियां दे हिसाब नाल। ऑप्शन आपां नूं दित्तियां होईयां ने 700, 710, 703 ਅਤੇ 800। हल 703 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। देखो सैकड़ा क्या है ना, तो सब तो पहला ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ सैकड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੋ। 700 ਤੇ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ क्योंकि ਉਹਨੇ सैकड़े ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, हंड्रेड्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अगर संख्या 750 ਉਹਦਾ ਅੱਧ 700 ਤੇ 800 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 750। 750 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 800। अगर उस तो घट होवे आंसर आंदा ਹੁੰਦਾ 700। ਹੁਣ 703 ਇਸ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? 700 ਆਣਾ है। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਕ
ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ which of the following expression represent the given number line। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8। पहला एक्सप्रैशन अपने को यह है। दूसरा एक्सप्रैशन है 8 + 1। तीसरा जो एक्सप्रैशन दिता हुआ है 1 की 8 बार गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 ते चौथा एक्सप्रैशन है 1 + 1 + 1 + 1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੱਧ ਗਏ? 8 ਸਟੈਪ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਲਈ, ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਲਈ ਸਹੀ ਕਥਨ ਚੁਣੋ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫॉर द गिवन नंबर लाइन। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, -3 -2 -1 0 1 2 3। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ A ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, B ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ C ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿੰਦੂ A -3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। Point A is greater than -3। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੋ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੰਦੂ C ਬਿੰਦੂ B ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। Point C is smaller than point B। देखो स्टेटमेंट ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ABC ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੰਦੂ A -1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ A ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ is greater than -1। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿੰਦੂ B 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ B
इज ग्रेटर दैन 0। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ A ਆ ਰਿਹਾ -3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੂ A ਆ ਰਿਹਾ -3 A ਰਿਹਾ, ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ A -3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਕਥਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੰਦੂ C ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਸੇ ਬਿੰਦੂ B ਆ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। C ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ C ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, B ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक, नेक्स्ट बिंदु A आ रहा -1 आ रहा, आ दोनों ने A खब्बे पासे है, A छोटा होना है, -1 सज्जे पासे है, वो बड़ा होना है। तो ये भी की हो गया, गलत हो गया, क्योंकि A -1 तो की है, छोटा है। नेक्स्ट बिंदु B किथे रहा, आ रहा 0 किथे रहा, आ रहा, तो सज्जे पासे 0 है, वो बड़ा होना है, B छोटा होना है। पर इत्थे बिंदु B 0 तो की लिखा होया है, वड्डा है, परंतु एक्चुअली की है संख्या रेखा के हिसाब नाल यह की है, छोटा है। तो जो संख्या रेखा ते आपां दो संख्यावां नूं दर्शाने आ तां इहदा मतलब जिहड़ी हमेशा खब्बे पासे वाली संख्या हुंदी है वो की हुंदी है, छोटी हुंदी है, ते जिहड़ी सज्जे पासे वाली संख्या हुंदी है वो किहड़ी हुंदी है, वड्डी हुंदी है। अगला क्वेश्चन, हेठां लिखियां विचों केड़ा सही है? Which of the following is true? Which of the following is true? क्वेश्चन है अपने कोले। देखो आपां नूं 4 ऑप्शन दित्तियां होईयां, आपां चैक करनियां ने किहड़ियां सही ने। पहली ऑप्शन 4/4 वड्डा है 1 तो, 0/6 बराबर है 1 दे। नंबर 3 1 वड्डा है 7/8 तो, डी 3/6 छोटा है 1/2 तो। आपां नूं 4 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, आपां चैक करना है किहड़ा सही है। देखते हैं, आ हल हो रहा, कट गया, 1 वड्डा है 1 तो, यह गलत है। क्यों? क्योंकि दोने की ने, बराबर ने। 0/6 कितना होंदा है, 0 होंदा है, तो 0 1 दे कदे भी बराबर नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 1 वड्डा है 7/8 तो, हाँ जी बिल्कुल सही। क्यों? जदों अंश, ये अंश हो गया न्यूमीरेटर, ये हर हो गया डिनोमीनेटर। जदों अंश हर तो छोटा होंदा है, न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर तो छोटा होंदा है, तो वह संख्या हमेशा 1 तो की होगी, छोटी होगी। जो अपना ही आंसर आ गया, आप इत्थे आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आप चौथा भी डिस्कस करांगे नॉलेज के लिए। ये कट्टिया जा रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 1/2 तो छोटा है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये आपस एक्चुअली की ने ये बराबर ने, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट की होगी, गलत होगी। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चल रहे हैं। जो 7th क्वेश्चन है वो आपां नूं की दिता होया है, सीमा कोल, अगले क्वेश्चन की आप गल कर रहे हैं। क्वेश्चन है सीमा कोल 100.5 रुपए हैं अते उस दे भरा अरुण कोल 100.05 है। हेठां लिखिया विचों केड़ा सही है? अपने को क्वेश्चन है, इंग्लिश की लिखे, सीमा हैज ₹100.5 एंड हर ब्रदर अरुण हैड ₹100.05. Then which of the following statement is true? Which of the following is ट्रू। आपन वहां स्टेटमेंट दी हुई है,
हुण जिहड़ियां ऑप्शनस ने आपां ऑप्शन की गल करते हैं। पहली ऑप्शन अरुण कोल 45 पैसे ज्यादा हैं। दूसरी ऑप्शन सीमा कोल 45 पैसे ज्यादा हैं। दूसरी ऑप्शन आपां नूं ए दित्ती हुई है। तीसरी ऑप्शन अरुण कोल 55 पैसे ज्यादा हैं। चौथी ऑप्शन दोनों कोल बराबर राशि है। हुण यह है आपां इसको चेक करना किवें चेक करिए। आपां पहले तो देखते हैं किहदे कोल की है। सब तो पहले आपां कंपैरिजन करते हैं। तो सीमा कोले हैगे ने 100.5, उसदे भरा अरुण मतलब मेरे कोले 100.05। सब तो वधिया तरीका होंदा जो दशमलव आ जाए एक दानेदार रेखा मार दो। आ देखो मारती, चेक करो इधर 100 इधर 100 ये बराबर ने। ठीक, इधर 5 इधर 0.5। हुण इस तो बाद आ अंक आ गया, इत्थे 5 है इत्थे 0 है तो आ वड्डा हो गया। तो यह मतलब ये गल क्लीयर हो गई किहदे कोल पैसे ज्यादा ने, सीमा कोले। यही है स्टेटमेंट्स देखो, अरुण कोल 45 पैसे ज्यादा हैं, गलत। सीमा कोल 45 पैसे ज्यादा हैं, यह हो सकता है। अरुण कोल 45 पैसे ज्यादा हैं, गलत। दोनों कोल बराबर राशि है, गलत। तो ऑप्शन ही केड़ी बच गई, आ बच गई। अगर सीमा की लाइन एक होर हुंदी फिर आपां घटा कर लेंदे, क्योंकि हुण ऑप्शन एक ही बच गई, आपां नूं इत्थे अगे हल करने की जरूरत नहीं हैगी। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपां क्वेश्चंस ते वर्क करना है जो आपां काम करना है। तो देखो एक लॉजिक बड़ा वधिया इत्थे कि हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपां नूं ऑप्शन ही दे रखी है। हल तां करांगे अगर दोनों ऑप्शंस दो ऑप्शंस एक नाल दियां हुंदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, बड़ा वधिया क्वेश्चन दिता होया आपां नूं। क्वेश्चन की कह रहे हैं दित्ती शक्ल विच या दित्ते चित्र विच एक डायग्राम आपां नूं दित्ती हुई है, ध्यान नाल तुसीं देखिया होना है। खुली किताब द्वारा केड़ा कोण दर्शाया गया है। देखो डायग्राम तुहानूं दित्ती हुई सी नाल, विच एंगल इज represented by the open book in the गिवन फिगर। आपां नूं आ दिता होया है। हुण देखो आपां जो ऑप्शंस आपां नूं दित्तियां होईयां की दित्तियां होईयां, न्यून कोण, अधिक कोण, रिफ्लैक्स कोण, समकोण। न्यून कोण अक्यूट एंगल, अधिक कोण obtuse एंगल, रिफ्लैक्स कोण रिफ्लैक्स एंगल। चौथी ऑप्शन अपने को हैगी है समकोण, राइट एंगल। हुण जिहड़ी आपां नूं डायग्राम दित्ती हुई है, ओबवियसली किताब की डायग्राम बनानी औखी है। मैं एक किताब लैके तुहानूं प्रैक्टिकल समझाना, लगभग इन्नी क किताब अपनी खुली है, उत्थे इन्नी खुली है ना। तो आपां नूं आ कोण की गल कीती है, तो यह किहड़ा कोण है, न्यून कोण, अक्यूट एंगल। अगर किताब बिल्कुल इन्ना खुल जाती, आ किहड़ा बन जाता, समकोण। जे आए खोल देंदे आ बन जाता अधिक, जे जमा टेढ़ी कर देंदे ये किहड़ा बन जाता, रिफ्लैक्स कोण बन जाता। तो ये चार ऑप्शंस की आपां गल कीती है। देखो दिता होया है वो आपां नूं न्यून कोण दिता होया है, पर एक ऑल्टर ते अगर आपां गल करिए कि आपां किहड़े-किहड़े अपने ऑप्शंस बन सकदियां ने, आपां उसकी गल कीती सी। 9th क्वेश्चन है, हेठां लिखियां विचों किहड़ी समांतर रेखावां दी
उदाहरण है। Which of the following is an example of पैरलल लाइन्स? जो क्वेश्चन दिता होया हुण इहदे नाल जिहड़ियां चार ऑप्शंस ने, ऑप्शंस किहड़ियां किहड़ियां है? सब तो पहलियां ऑप्शन है मेज दे लागवें किनारे, एडजस्टेंट साइड्स ऑफ टेबल, जो आपां नूं पहली ऑप्शन दी है। दूसरी ऑप्शन की दी है? रेलवे ट्रैक, रेल लाइन आप जिसनूं बोलते हैं, रेलवे ट्रैक। जो सैकेंड ऑप्शन आपां दी हुई है। थर्ड ऑप्शन दी हुई है एक्स जो वर्ड है, एक डायग्राम जिहड़े आपां कहने इंग्लिश का अखर है, एक्स अखर नाल बनिया चित्र, डायग्राम आपां नूं दी हुई है। दूसरा जो लास्ट ऑप्शन दी अगली चौथी आपां कह सकते हैं वह है वी अखर वाला चित्र। हुण समांतर रेखावां ते इत्थे क्वेश्चन है, समांतर रेखावां किहड़ियां हुंदियां? आह जिहड़ियां आपां कह सकते हैं कदे भी नहीं कटदियां समांतर रेखावां हुंदियां। मेज दे लागवें किनारे, बेसिक इहदा मतलब की होया पहला ये, क्योंकि इस ही कन्फ्यूजन वाला है। मेज देखो जो मेज के टॉप की गल करते हैं लगभग इस शेप च होंदा है, आयत शेप च होंदा है। लागवें किनारे आ हो गए, आ दोने ये किहड़े ने? लागवें किनारे। कि ये समांतर रेखावां ने? नहीं। ये किहड़ियां रेखावां होणगियां? चलो एक ऑल्टर, ये लंब रेखावां होणगियां। रेलवे ट्रैक, हाँ जी ये दी उदाहरण है। अपना आंसर इत्थे आ गया, पर आप अगे डिस्कस करते हैं। एक्स डायग्राम किहड़ी आ होगी? ये किहड़ियां रेखावां ने? काटवियां। वी आ हो गया, ये भी किहड़ियां रेखावां ने? काटवियां रेखावां ने। तो जिहड़ा अपना आंसर आ गया वो क्लीयर पहला ही हो गया सी कि की आ गया सी? रेलवे ट्रैक। तो अपने को ऑप्शन यदि की आ गई सी? बी, जो अपना आंसर सी। हुण आपां अगे गल करते हैं जो 10th है, हेठां विचों केड़ा कथन सही नहीं है? Which of the following is not correct? Which of the followings is not correct? ऑप्शन लेके चलते हैं। पहली ऑप्शन, 0 सब तो छोटी कुदरती संख्या है। 0 is the smallest natural number। जो पहली ऑप्शन आपां नूं दित्ती हुई है वो आ दित्ती हुई है। दूसरी ऑप्शन आपां नूं की दित्ती हुई है? सारियां कुदरती संख्यावां पूर्ण संख्यावां हन। सारियां कुदरती संख्यावां पूर्ण संख्यावां हन। all natural numbers are whole numbers। ये अपने को केड़ा ऑप्शन दिती हुई है? दूसरी ऑप्शन दिती हुई है। तीसरी, एक दा पिछेतर 0 है। 0 इज प्रेडिसेसर ऑफ 1। ये तीसरी ऑप्शन है। ते लास्ट ऑप्शन की दिती हुई है? 0 सब तो छोटी पूर्ण संख्या है। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। हुण 4 ऑप्शन है, आपां ये दसनी है इन्हां दे विचों केड़ा कथन सही नहीं है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 सब तो छोटी कुदरती संख्या है। कुदरती संख्यावां किहड़ियां हुंदियां? 1 2 3 4 जिहड़ियां तो शुरू होंदियां। तो सब तो छोटी किहड़ी आ गई? 1 आ गई। तो क्वेश्चन क्लीयर हो गया, यह गलत है। तो आंसर अपना आ चुके, अगे जाने की जरूरत नहीं हैगी, परंतु आप डिस्कस करांगे।
ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6, ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ 0 1 2 3 4, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਨ। 1 ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ 0 ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ 1 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, 0 ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0। 0 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 0 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ ਗਈ, 0 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।